Our next topic is relative reactivities of aldehydes and ketones. Okay, we just had a glimpse of that. Which of these two is more reactive? Whether aldehyde is more reactive or ketone is more reactive, and we have learned that aldehyde is more reactive. One of the reasons we had seen, but let's study in a little bit more detail. Aldehydes are generally more reactive than corresponding ketones in nucleophilic addition reaction due to following two reasons. If they'll ask you explain it with examples or in detail, then you have to give these two examples. First, steric effects. Steric effect is important. The reason over here, because in steric effect, if we see over here for aldehyde and ketone, this is our ketone and this is our aldehyde. जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है कार्बन के साथ, सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है कार्बन के साथ यहाँ पे, बोथ द केसेस. बट यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है कार्बन को, उस टाइम पे उसके बीच में रास्ते में दो अल्काइल ग्रुप आते हैं और यहाँ पे एक ही ग्रुप आता है. एक हाइड्रोजन ग्रुप है जो छोटा होता है कंपेरेटिवली. अल्काइल्स आर लार्जर इन साइज एंड सिंस अल्काइल्स आर लार्जर इन साइज, इनको बीच में काफी सारा हिंड्रेंस होता है, क्राउडिंग लगता है बीच में, इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल. ये जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं रहेगा एज कंपेयर टू aldehydes. Aldehyde में न्यूक्लियोफाइल कैन एक्सेस इजीली. तो दैट्स कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट. देखो यहाँ पे लिखा है, as the number and the size of the alkyl groups attached to carbonyl group increases, जितने अल्काइल ग्रुप उसके नंबर बढ़ते हैं, उसकी साइज बढ़ती है, then the attachment of nucleophile on the carbonyl group carbon becomes more and more difficult due to steric hindrance, which we know as crowding. As the crowding increases, the reactivity of carbonyl group compound decreases. जितना crowding ज्यादा उतनी reactivity less. So the reactivity of formaldehyde, इसीलिए formaldehyde सबसे ज्यादा reactive, क्योंकि formaldehyde के पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन है. I'm sorry, हाँ, okay, you may write like this also. दोनों के दोनों कैसे हाइड्रोजन. Since there is no alkyl group with the formaldehyde, and while the other aldehyde having one alkyl group, दूसरे aldehyde के पास एक alkyl group है, is less reactive compared to formaldehyde, and obviously ketones having two alkyl groups, the reactivity is less than the corresponding aldehydes. बराबर है. तो ये पहला पॉइंट कौन सा देखा हमने? Because of steric hindrance, aldehyde is more reactive and formaldehyde is the most reactive. Correct? And we will continue further. सेकेंड इज इंडक्टिव इफेक्ट. इनफैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं. एज वी नो, यहां पे जो रिएक्शन होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो बिकॉज यहां पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अटैक कर रहा है. तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पे ज्यादा होगा उतना ही ऑब्वियसली अटैक ज्यादा होगा एंड रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी. मैं आपको पहले ही बता चुका, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखते डिटेल में. और यहां पे एक ही इंडक्टिव ग्रुप है, यहां पे एक ही, और यहां पे कितने इंडक्टिव ग्रुप है? दो है, इसलिए इसका चार्ज थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू अल्डिहाइड. चार्ज कम हो जाता है इसलिए रिएक्टिविटी लेस हो जाती है. लेट्स सी व्हाट डज योर बुक से. द अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनिल ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन. द अल्काइल ग्रुप which is electron donating and hence has positive inductive effect. So more the number of alkyl group on the carbonyl carbon, the magnitude of this positive charge on carbonyl carbon decreases, which lowers the reactivity towards the nucleophilic addition reaction. Therefore formaldehyde is the most reactive because उसके पास तो एक भी alkyl group नहीं है. It doesn't have a single alkyl group. Okay.
more reactive compared to the aldehydes and ketones which are less reactive than the aldehydes. Is this understood? आगे डिटेल में और देखते, थोड़ा सा और हमको बताया गया. The aromatic aldehydes and ketones. अगर यहां पे आपके पास अरोमेटिक दिया गया है, यहां पे कोई बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो उससे फर्क पड़ेगा. Yes, they are less reactive than the aliphatic aldehydes and ketone because the electron donating resonance effect of benzene ring. यहां पे जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर रेजोनेंस होता है. नॉट ओनली दैट, बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन. कार्बन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है. हेंस उसके पर न्यूक्लियोफाइल इतने इजीली अटैक नहीं करेंगे, इनफैक्ट समटाइम्स वो रिपेल हो जाता है. सो देयरफॉर aromatic aldehydes like benzaldehyde is more. अच्छा बराबर, यहां तक समझ में आ रहा. उसके बाद आपको और कुछ बताया गया है. aromatic aldehyde, अगर आपके पास benzaldehyde है, benzaldehyde is this, okay, is more reactive than the alkyl aryl ketone. ये कीटोन से तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे. अल्काइल अराइल कीटोन, ये अल्काइल अराइल कीटोन हुआ. दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अराइल ग्रुप, एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन द डाई अराइल कीटोन. आपको समझ में आ रहा है? लाइक बेंजाफिनोन. इज इट फाइन?